بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، آج کی خبر جو ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ جو زرعی انکم ٹیکس کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں سوالات تھے، ان سب سوالات کے جوابات جو ہیں وہ مل چکے ہیں۔ زرعی انکم ٹیکس کے حوالے سے نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری ہو چکا ہے، قانون سازی مکمل ہو چکی ہے۔ کس پر کتنا زرعی انکم ٹیکس عائد ہوگا، تمام خد و خال جو ہے وہ سامنے آ چکی ہیں۔ زمین پر دو قسم کے ٹیکسز ہیں، ایک زمین پر ٹیکس ہے جو پہلے بھی کاشتکار جو ہے 12.5 ایکڑ سے زائد کا زمیندار ہے وہ پے کر رہا تھا، وہ بھی ایز اٹ ایز رکھا گیا ہے۔ وہ کتنا چارج ہوگا فی ایکڑ، اور جو زرعی آمدن ہے اس پر کتنا ٹیکس چارج ہوگا، اس تمام کے جو خد و خال ہیں وہ سامنے رکھے جائیں گے۔ ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ کس کو فائل کرنی ہے، اور دوسرا ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ جو زرعی انکم ہے اس کا تعین کیسے ہوگا۔ اگر کوئی کاشتکار یہ کہتا ہے کہ میری تو آمدن ہی نہیں ہے، میری آمدن کم ہے، تو اس کے لیے بھی ایک کمیٹی قائم کی گئی ہے جو تمام تر معاملات کو دیکھ کر زرعی انکم ٹیکس جو ہے وہ عائد کرے گی۔ ان تمام پہلوؤں پر جو ہے وہ آج بات کریں گے۔ سب سے پہلے جو فکس ٹیکس ہے، جو زمین پر ٹیکس ہوتا ہے، جو پہلے بھی آج تھا، نوٹیفیکیشن میں اس کا بڑا واضح ذکر ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جس کسان کا رقبہ 12.5 ایکڑ تک 12.5 ایکڑ سے کم ہے اس پر کوئی ٹیکس جو ہے یہ نہیں ہے۔ ابھی زرعی انکم کی بات نہیں ہو رہی، یہ رقبے کی بات ہو رہی ہے کہ جن لوگوں کے پاس 12.5 ایکڑ سے کم رقبہ ہے اس پر جو ہے وہ کسی قسم کا زرعی ٹیکس نہیں ہے۔ اور ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر 12.5 ایکڑ تک جو ہے وہ قابل کاشت اور 25 ایکڑ تک اس کے پاس بنجر زمین ہے تو اس پر کوئی جو ہے وہ ٹیکس عائد نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر کسی کے پاس 12.5 ایکڑ سے 25 ایکڑ تک قابل کاشت اور 50 ایکڑ تک بنجر رقبہ ہے تو اس شخص پر جو ہے وہ اس زمیندار پر 300 روپے فی ایکڑ جو ہے وہ ٹیکس عائد کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جس کے پاس 25 ایکڑ سے 50 ایکڑ تک کا قابل کاشت رقبہ ہے اس پر 400 روپے فی ایکڑ، اور اسی طرح اگر کسی کے پاس 100 ایکڑ تک بنجر زمین ہے تو اس پر جو ہے وہ بھی 400 روپے فی ایکڑ ٹیکس عائد کیا گیا ہے۔ اس طرح اگر کسی کے پاس 50 ایکڑ سے زیادہ جو ہے وہ رقبہ ہے، قابل کاشت ہے، تو اس پر جو ہے وہ 500 روپے فی ایکڑ کے حساب سے ٹیکس ہوگا اس زمین پر۔ وہ اس زمین اگر زمین قابل کاشت ہے، کسان نے اس کو چھوڑا ہوا ہے، اس کو کچھ اگاتا ہے نہیں اگاتا، لیکن جو زمیندار ہے اس کے لیے لازم ہے کہ اگر 50 ایکڑ سے زیادہ رقبہ ہے تو 500 روپے فی ایکڑ جو ہے وہ اس کو بطور ٹیکس جو ہے وہ سرکار کو دینا ہوگا۔ اور اسی طرح اگر میچورڈ آرچرڈ باغات ہیں، باغات بالغ ہیں، ان باغات پر پھل لگتا ہے تو ان پر جو ہے وہ ٹیکس عائد کیا گیا ہے۔ اور اگر وہ باغات ایسی زمین پر ہیں جس کو سیراب کیا جاتا ہے، اریگیٹڈ لینڈ ہے، تو اس پر 600 روپے فی ایکڑ، اور اگر وہ ان اریگیٹڈ لینڈ پر ہیں جہاں پر جن کا انحصار بارشوں پر ہے، جن کو اس زمین کو سیراب نہیں کیا جاتا، تو وہاں پر 300 روپے فی ایکڑ جو ہے وہ اس کاشتکار جو ہے اس کو ٹیکس زمیندار کو جو ہے وہ دینا ہوگا۔ یہ تو ہوگی فکس ٹیکس کی بات۔ اب آگے آتے ہیں زرعی انکم ٹیکس پر۔ زرعی انکم ٹیکس کے حوالے سے تمام چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہو چکی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ زرعی انکم ٹیکس کے حوالے سے آپ کو مکمل بھی جو ہے معلومات ملیں تو آپ نے یہ سیگمنٹ جو ہے یہ لازمی سننا ہے۔ اگر کسی شخص کی آمدن 6 لاکھ ہے تو اس پر کوئی ٹیکس نہیں ہے، وہ زیرو ٹیکس ہے اس پر۔ اور اگر کسی شخص کی آمدن 6 لاکھ سے 12 لاکھ روپے تک ہے تو اس پر جو ہے وہ 15% جو ہے وہ ٹیکس عائد کیا گیا ہے۔ اور 15% کیسا ٹیکس ہے اس کو تھوڑا سا سمجھنا آپ نے۔ اگر کسی کی انکم 6 لاکھ سے 12 لاکھ کے درمیان ہے، یہ 6 لاکھ تک تو فری ہوئی، اگر اس کی انکم 9 لاکھ روپے ہو جاتی ہے تو اوپر جو 3 لاکھ ہیں ان پر ٹیکس عائد ہوگا، اور ان پر 15% کے حساب سے جو ہے وہ ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ پہلے 6 لاکھ جو ہیں وہ ان پر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا، وہ زیرو ٹیکس ہوگا۔ وہاں پر اوپر والی جو رقم ہے اس پر جو ہے وہ 15% جو ہے ٹیکس عائد کیا گیا۔ اب آگے جب 12 سے 16% تک جو ہے وہ انکم ہوتی ہے تو اس میں مزید تبدیلی کی گئی۔ اس میں کیا کیا گیا کہ اگر کسی شخص کی جو زرعی انکم ہے وہ 12 لاکھ سے 16 لاکھ روپے تک ہے تو سب سے پہلے اس کو 90,000 روپے جو ہے وہ دینے ہی دینے، یہ فکس ٹیکس ہے۔ 12 سے 16 لاکھ انکم ہے تو 90,000 روپے آپ کو دینا پڑیں گے، اور 90,000 کے ساتھ جو اضافی آپ کی رقم ہے
मतलब 12 लाख से ऊपर जो रकम है, मतलब आपकी इनकम जो है ज़रूरी इनकम वो 13 लाख या 14 लाख रुपए होती है। एक तो आपने 90,000 रुपए दे दिए और साथ आपने जो 13 लाख की आपकी इनकम है, आपका 1 लाख रुपए जो है वो इजाफी इनकम है। उस इजाफी इनकम पर आपको जो है वो 20% टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपए इजाफा है तो 20,000 रुपए आपको ये भी उस 90,000 में ऐड करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं 16 लाख से 32 लाख तक। अगर किसी पंजाब के रहने वाले शख्स की जो ज़रिए इनकम है वो 16 लाख से 32 लाख रुपए तक चली जाती है, तो एक तो उस पर लाजिम है कि वो जैसे 16 लाख को टच करेगी तो 1,70,000 रुपए उसने फिक्स जो है टैक्स है जो है वो देना ही देना है। और अगर 16 लाख से ऊपर उसकी इनकम है, सपोज 16 लाख से ऊपर उसकी 16 लाख से 32 लाख के दरमियान उसकी 16 लाख से ऊपर जो है वो 10 लाख रुपए 26 लाख रुपए उसकी टोटल इनकम है, तो 1,70,000 तो उसने देना है। अब ऊपर वाला जो 10 लाख है उस पर उसने जो है वो 30% के हिसाब से टैक्स देना है। मसलन अगर 10 लाख ज्यादा है तो 3 लाख रुपए वो भी उसने टैक्स देना है और 1,70,000 तो उस पर फिक्स है। ये होगी 32 लाख तक। अब 32 से 56 लाख अगली स्लैब जो है वो 32 लाख से 56 लाख की है, उसमें 6,50,000 रुपए जो है वो फिक्स टैक्स है। अगर आपकी इनकम जो है वो 32 लाख और 1 रुपया हो जाती है तो ये क्लियर बात है कि आपने 6,50,000 रुपए जो है वो टैक्स देना ही देना। अब 6,50,000 तो आपने दे दिया, उससे ऊपर 32 लाख से ऊपर जितनी इनकम है और 56 लाख से कम है, मसलन 32 लाख से ऊपर आपकी इनकम जो है वो 12 लाख रुपए बन जाती है, या 13 लाख रुपए है या 1 लाख है, जितनी इनकम आपकी ज्यादा होगी उसका 40% जो है वो आपने टैक्स अदा करना है। अब आखिरी इसमें जो स्लैब है वो 56 लाख से ज्यादा है। जिस बंदे की जरी इनकम जो है वो 56 लाख से ज्यादा जितनी भी है, वो करोड़ है 2 करोड़ है, जितनी भी उसकी इनकम है उस पर ये फिक्स किया गया है कि 56 लाख से जैसे उसकी इनकम 56 लाख से ऊपर जाएगी तो 16,10,000 रुपए जो है उसने फिक्स टैक्स देना है, ये तो देना ही देना है। 56 लाख से ऊपर जितनी इनकम हो, 10 लाख है, 20 लाख है, 1 करोड़ है, तो उसका उसने 45% जो है वो बतौर टैक्स जमा करवाना है। ये तमाम एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की स्लैब्स हैं, लेकिन इसमें अब एक और बात ये है कि अगर कोई छोटी कंपनी है जो एग्रीकल्चर कंपनी को रजिस्टर्ड है FBR में, तो उस कंपनी को जो है वो स्मॉल कंपनी पे 20% है और बड़ी कंपनी जो होगी उसको जो है वो 30% के हिसाब से ज़री इनकम पर जो है वो टैक्स देना होगा। ये सारे टैक्स स्लैब हैं। इसमें जो बड़ी अहम बात है वो ये है कि टैक्स लेगा कौन। तो टैक्स के लिए जो रिटर्न आपने जमा करवानी है वो अपने मुतल्लिका तहसील के असिस्टेंट कमिश्नर जो AC साहब हैं उनके पास आपने रिटर्न जमा करवानी है। और उसके साथ एक जो अहम बात है वो ये है कि जिस तरह FBR में रिटर्न जमा होती हैं तो तारीख में तोसी होती रहती है, तो क्या तोसी होगी और अगर होगी तो वो किस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, ये बड़ा अहम पॉइंट है। इस हवाले से जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब है उसको ये इख्तियार होगा कि वो जो टैक्स रिटर्न की तारीख है उसमें तोसी कर सकेगा। अब वो तारीख जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है वो समरी इनिशिएट करेगा, उसको हुकूमत को अरसाल करेगा। हुकूमत से जब उसकी मंजूरी होगी तो उसके बाद जो तारीख है, जो रिटर्न फाइल करने की तारीख है, उसमें तोसी हो सकेगी। एक और अहम चीज़ ये है कि यहाँ पर लोग कहेंगे कि मेरी जो इनकम है वो टैक्सेबल नहीं है, उस पर कैसे चेक रखा जाएगा। तो उसके लिए एक कमेटी जो है वो हर जिला में तश्कील दी जाएगी और उस कमेटी का जो सरबराह होगा, जो कन्वीनर होगा, वो जो है वो कलेक्टर ऑफ सब डिवीजन जो है वो ADCR भी हो सकता है, वो DC भी हो सकता है, वो उस कमेटी का सरबराह होगा। उस कमेटी में 3 और मेंबर होंगे, एक तो असिस्टेंट डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, ये एग्रीकल्चर का एक विंग है जो ज़राअत के तमाम मामलात किसी ज़िला या तहसील में देख रहा होता है, उसका असिस्टेंट डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर उसका मेंबर होगा। उसके अलावा जो तहसील ऑफिसर होगा क्रॉप रिपोर्टिंग सर्विस, ये क्रॉप रिपोर्टिंग सर्विस जो है ये भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का एक विंग है जिसने रिपोर्टिंग करनी होती है कि किस जिला में या किस तहसील में कितनी फसल काश्त हुई है। मसलन उसने गंदम का तमाम डाटा जो है वो मरतब करना है कि कितनी गंदम काश्त हुई है, चावल का करना है, गन्ने का करना है, कॉटन का करना है, और फिर उसने जब प्रोडक्शन होती है तो उसका भी डाटा कलेक्ट करना है कि जो पैदावार है फी एकड़ जो है वो कितनी। ये क्रॉप रिपोर्टिंग सर्विसेज वाले का काम होता है। तो इसका असिस्टेंट डायरेक्टर
एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का डिप्टी डायरेक्टर जो हैं ये भी इसके मेंबर होंगे, और तीसरा इसका मेंबर जो है वो जो कलेक्टर होगा उसको ये इख्तियार होगा कि वो जिसको मर्जी चाहे साथ जो है वो सरकारी बंदे को जो है वो अपना मेंबर दे सकता है। ये कमेटी जो है ये देखेगी कि फसल जो है वो कितनी काश्त हुई है, पैदावार जो है वो कितनी हो रही है, रेट क्या चल रहे हैं, इन सब तमाम चीज़ों का ये कमेटी जायजा लेने के बाद इस बात का तयन करेगी। अगर कमेटी को लगता है कि किसी बंदे के पास इतना रकबा है और इसने इतनी कास्ट भी की होगी, क्रॉप रिपोर्टिंग वालों ने जो डाटा दिया होगा उसके बाद वो देखेगा कि इसने इतनी कास्ट भी की होगी, तो फिर ये क्यों कह रहा है कि मेरी इनकम नहीं है। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद कलेक्टर जो है उसको ये इख्तियार होगा कि अगर किसी की इनकम, किसी ने कोई बंदा कोई चीज़ छुपा रहा है तो वो उससे उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जा सकती है, उससे डाटा मंगवाया जा सकता है, उसको जो है वो टैक्स ऐड किया जाएगा और उसको टैक्स के साथ साथ जो है वो कोई पेनल्टी भी कलेक्टर का अख्तियार होगा कि वो आयद कर सके। ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन इसमें आखिर पे मैं आपको बताऊं कि बताया ये जा रहा है कि 93% पंजाब के जो ऐसे काश्तकार हैं, जो ऐसे ज़मींदार हैं, आपको पता है कि तकरीबन 55 लाख के करीब चमन से 55 लाख के करीब जो है वो काश्तकार फैमिलीज़ हैं पंजाब में, और 1,10 या 11 लाख के करीब जो है वो इंडिविजुअल्स हैं। मसलन एक बंदा है, उसके 2 बेटे हैं, तो जो वो बंदा है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो तकरीबन चमन से 55 लाख, अगर उसके बेटों को भी शामिल किया जाए तो तकरीबन 1,10 या 11 लाख जो है वो 1,10,11,00,000 जो है वो अफराद बनते हैं जिनके पास ज़मीन है। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि 93% लोग ऐसे हैं जिन पर ज़रूरी इनकम टैक्स जो है वो आयद होता दिखाई नहीं हो रहा, क्योंकि ज़मीनों की तकसीम दर तकसीम से वो लोग जो हैं वो ज़रूरी इनकम टैक्स की स्लैब से निकल जाएंगे। लेकिन चूंकि IMF की मजबूरी थी, IMF ने कह दिया था कि आप लोगों पर जो है वो ज़रूरी इनकम टैक्स ऐड करें, तो तमाम जो सूबाई हुकूमतें हैं उन्होंने इस पर काम किया, कानून साजी की, उसके बाद तमाम उमूर जो है उनको हतमी शक्ल देकर ज़रूरी इनकम टैक्स जो है वो आयद कर दिया गया है। लेकिन वो जो छोटे काश्तकार तकरीबन आप देख लें कि जो 8 एकड़ तक या 6 एकड़ तक के ज़मींदार हैं उनकी इनकम जो है वो काबिल टैक्स नहीं होगी। आजकल का अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो आजकल तो शायद कोई भी जो ज़मींदार या काश्तकार है उसकी आमदन जो है वो टैक्सेबल नहीं होगी, लेकिन माजी में अगर अच्छा रेट मिलेगा तो यकीनन बहुत सारे लोग जो है उन पर टैक्स आयद होगा। ये तमाम आदाद व शुमार थे, ये तमाम चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने रखी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।